Fine. Uh, Myself, M.K. Srivastav, Vice President, AIVA, hereby welcome all the members of this webinar who are present here. Like every month, we are assembled once again here for the webinar on the second Saturday. So today the DGM SBI was joining the webinar, but due to some unavoidable reasons, he couldn't join us. So we are very sorry for that. Now we welcome all the members here, present here, and now we start this webinar. And now I hand over to Mr. S.S. Das, President, to continue further. Mr. S.S. Das. Good morning to everybody. Actually, I'll talk very less because I'm having some throat problem. So I like to welcome our guest speaker, who is the best speaker because last time we had also heard him, a very good speaker. So some 10 days back, I had requested him to join us as a speaker. He agreed for this. So I like to welcome him. I like to welcome all our members joining in this webinar. Actually, regarding chief guest, what problem we are facing, yesterday I had to talk with the DGM State Bank as well as RM Canara Bank. DGM State Bank was agreed to join us because he has to urgently go to LHO for some meeting, so he left for Kanpur. But Canara Bank RM strictly told, sir, once or twice in a week, month we are getting holiday, so how can I spend our time with your webinar? So that's why I had talked to our colleague, our vice president and general secretary. So most probably we are going to change the webinar date. Instead of second Saturday, we'll take it to first or third Saturday as per the final decision of our council. So it will better without the chief guest. It will look no, it will not look nice because we should have some impression on the chief guest. So for that we have to sing the sweeter of them also. So therefore, from next month, what I think it will be will joining either on first Saturday or third Saturday, depending upon the final discussion of our council member. So there are some change. Actually, there are certain problems. I think in Agra zones, PNB is getting some problem. Is creating some problems. We had completed our documentation in Banaras, Lucknow, Meerut, and Delhi also without giving indemnity, and they had cooperated us. But here, the chief manager, I think, giving some problems. I had already a letter to the DGM as well as CE MD. Then through WhatsApp also I am talking with chief manager because I'm not in position to talk in mobile, so I am talking in WhatsApp also. I think from our Agra center we came to know that the chief manager is on leave in medical leave. He will be joining on Monday, so we'll take up the matter. So after the webinar, we'll join and discuss about the PNB Agra zone. After that, one more problem is there in Bulandshahr. One branch manager had given some odd word with our valuer. So this point is also required to be discussed. In Kolkata, we had some problems in state bank documentation, but through WhatsApp conversion, with the chief manager with me, the problem got sorted out. So each and every bank officers also not so hard to force all the valuers to give the indemnity, but some are there. So we have to tackle with them. So after the webinar, we will discuss about the future course of action to be taken for Agra zone as well as Bulandshahr also, Union Bank concern. So with this, I'm stopping my word because I'm not in position to talk more. Now I'll request MK Srivastava, my colleague, to continue the program. Please, MK, please. Manoj, please. Yeah. Now I will ask Chairman IEI, Mr. Mukesh Kumar, to deliver his speech. Please. Mukesh ji.
Mukesh is not here. Then he has joined his photo. He's He's available. I think he's available. I'm contacting him. मेरे ख्याल में आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए. अच्छा मुकेश जी आ गया आ गया मुकेश कुमार आ गए सर. आ गया आ गया. टेक्निकल इशू है उनको. और कोशिश कर रहे तो फिर आगे बढ़ना. आनंद से कहना काम का करे. Okay. और थोड़ी Now I देर will call upon Vice President Mr. Anand Singh to introduce our guest speaker and proceed further. Please, Anand ji. Yes, I'm audible. Yeah. ये आवाज मिल रही है? तो आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो मिस्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह जी हैं. तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. भूपेंद्र प्रताप सिंह is a distinct of more than 4 decades in real estate valuation. He is a founder of mortgage valuation. ठीक है. तो ये आनंद के बाद आपको survey valuation service आनंद के बाद ना. portal. Then earn foreign currency. Nobody. He is the first independent real estate appraiser in India to hold an MBA in real estate. Mr. Singh also awarded the first prize under the service sector category of UP Government MSME Award in 2018-19. He is also a visiting professor at the Institute of Chartered Accountant of India, where he taught valuation to qualified chartered accountants. He also worked as guest faculty of on valuation and other banking issues to public sector banks and prestigious government and private university at the postgraduate and MBA level. Mr. Singh has been instrumental in setting the examination paper for the prestigious government and private university at the PG level and MBA level. He serves as a valuation specialist for many agencies, a joint venture of ICICI, IDBI, IFCI, banks, EIIC, and CIDCO, handling valuation assignment by the Honorable High Court of India. High Court of Delhi. Mr. Singh expertise is sought by the diverse array of clients, including Indian and foreign courts, multinational corporations, financial institutions, and leading government and private sector organizations. He is a professional member of research interested focus on the impact of black money on real estate values. He has been quoted by many media outlets, including Hindustan Times, Indian Express, CNBC, G Business, Sahara, Star News, and many newspapers.
Mr. Singh has been invited by the Delhi government to speak the uh, consultative workshop on the first revision of Delhi Circulate, chaired by the Chief Minister of Delhi. He is also a member of the Board of Study of RICS School of Built Environment, Amity University. His global perspective on the real estate market is enriched by visits to numerous countries, including the USA, Canada, Germany, Switzerland, Austria, France, Mauritius, China, Pakistan, Malaysia, Singapore, Thailand, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Bhutan, and Sri Lanka, etc. It was a brief introduction of our guest speaker. So I will request him to give his prestigious lecture. अभी अभी मुकेश सर जुड़ गए हैं। मुकेश सर के स्पीच के बाद लेक्चर शुरू करेंगे। मुकेश सर प्लीज। Thank you, Engineer S.S. Das ji, and along with Engineer Aman Singh ji. I'm Professor Mukesh Kumar Singh, Chairman the Institute of Engineers, Kanpur Local Center. On behalf of both these organizations, the Institute of Engineers India as well as IVA, I would like to welcome you again. Everybody is spending his valuable time during this very, can say, the hot evening. And today's speaker is also the whole remains very much academic as a mission is achieving. Today he is going to talk on productive integrity, addressing law, fee, and fake valuation reports. As this topic indicates, that fake valuation and integrity of job for protecting integrity. Loyalty of any kind of profession that remains always important. We have to be very honest about our profession. So today's topic is really very interesting, and all valuers who are present here and other members of the Institute of Engineers, they will really enjoy this topic. And I would like to thank to IVA for this activity to continue since last couple of years on every uh, this second Saturday. IVA organized this activity flawlessly without any hindrance in this activity, and all the time speakers, chief guest of the program, that remains really very commencing and valuable. So, on behalf of the Institute of Engineers, I welcome you again, and I hope that the today's seminar that will really achieve a great success. Thanks. Dasa, please continue. Chief speaker sir, please come forward and give your speech. Yeah, now over to Engineer Bhupen Pratap Singh ji. He is here from Ghaziabad. So over to today's speaker, Engineer DP Singh. DP Singh. Yes, yes. I was muted in the ध्यान नहीं दिया मैंने. Yeah. Yes. Good evening, friends. Good evening, Chairman IEI, का छोटा कर दो उनको। Captain Mukesh Kumar Singh, my colleagues at IVA, and learned value friends. Our today's topic is protecting integrity, addressing low fees and fake valuation reports. Basically, the most important thing these days is with the valuers they are facing low fees. They are struggling with the fees. They are doing their job, but they're not getting sufficient fees, even the fees prescribed by the banks. So this is today's topic, and the reason for this and how we can cope with it, and because of that only हमें बहुत सारे values integrity के साथ भी compromise हो रहा है हमारी reports में. Basically,
हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है और इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल्स बताए थे। रूल नंबर 1 सेल्फ इंटरेस्ट, रूल नंबर 2 कंपटीशन एंड रूल नंबर 3 डिमांड एंड सप्लाई। जो बेसिक इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल्स है, इसी पे इकोनॉमिक की स्टडीज सारी होगी। तो जो बेसिक रूल नंबर 1 है सेल्फ इंटरेस्ट, अदरवाइज आल्सो ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है किसी भी कंज्यूमर की कि जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें वो सर्विसेज कम से कम प्राइस पे मिले। और दिस इज वेरी ऑब्वियस आल्सो एंड दिस इज द बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आई मीन ऑल द स्टडीज का बेसिस है। यानी एवरी रैशनल इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स इन सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब कोई बहुत बुरा शब्द नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब if we go to buy a product in the market, जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं, हम अगर सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट देख रहे हैं, पोटैटो ही खरीद रहे हैं, 10 रुपए किलो है और दूसरे प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का पोटैटो 8 रुपया, तो हम 8 रुपया खरीदेंगे। हमें सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करेंगे, विल नॉट थ्रो आवर मनी फॉर 10 रुपीज। तो दैट वे हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमें कम से कम पे मिले। लेकिन अगर हमारा ये एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा हो, अनरीजनेबल हो, तो हम वल्नरेबल हो जाते हैं फेक प्रोडक्ट या सर्विसेज के फेरे में। होता क्या है, जैसे जैसे हम प्राइसेस नेगोशिएट करते हैं, कम से कम करते चले जाते हैं। मैंने प्रोडक्ट्स के मामलों में तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि फेक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं मार्केट में, हमको एल्योर करते हैं और इनोसेंट और नॉर्मल आदमी उनके फेरे में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन में देखिए, फेक प्रोडक्ट्स आ गए, वो और जो फेक होता है तो प्राइसेस ऑब्वियसली वो कम पे देने लगते हैं। और इट इज हैपनिंग इन रियल, आई मीन सर्विसेज आल्सो। सर्विसेज में हमने ऑब्जर्व किया कि बैंकर्स आरबीआई की मैंडेट पे और आईबीए की मैंडेट पे वो उन लोगों ने अपनी एक पॉलिसी बनाई, हु कैन वैल्यू एसेट्स फॉर अस। और उनकी पॉलिसी के हिसाब से ये है कि एक सर्टेन क्वालिफिकेशन का आदमी, क्वालिफाइड आदमी विद सर्टेन एक्सपीरियंस, यानी क्वालिफाइड प्रोफेशनल विद एक्सपीरियंस को ही उन्होंने अपने मैंडेट में बनाया कि वही वैल्यूएशन करेगा। और वो चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं कि वो स्वयं ही अपनी प्रॉपर्टी को देखिए। अब हो क्या रहा है, जो हमारी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज ही हो रहा है। और बैंकर्स के साथ भी एक मुश्किल ये है, बैंकर्स जब अपना उनके मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन जब है, तो उनको भी कम्पीट करना है। उनके पास उनका बरोबर आता है, वो प्रोडक्ट सेल करना उनके लिए कॉम्पिटिटिव है, तो वो चाहता है कि कम से कम पैसा खर्च हो। तो बैंकर्स प्रेशराइज करते हैं, नेगोशिएट करते हैं वैल्यूअर्स के साथ कि सब आप कम प्राइस पे सर्विसेज प्रोवाइड करिए। और यहीं पे शुरू होता है ये प्रॉब्लम। अब जो वायबल नहीं है एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस आदमी के लिए, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है इतने लो प्राइस पे, तो कुछ अनस्क्रूपुलस वर्ड मैं ही इस्तेमाल करूंगा कि हमारे कुछ वैल्यूअर्स अपने वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनक्वालिफाइड इनएलिजिबल लोगों को अपॉइंट कर रखा है, कम पढ़े लिखे, लो पेड। अब उन्होंने क्या कर रखा है, टीम बना ली 10 की, 15 की, 20 की, जिससे वो हायर वॉल्यूम का काम कर सके, इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा उठा सके। तो वो अगर एक वैल्यूअर, अगर बैंकों की जो कंडीशन ये है कि एक क्वालिफाइड वैल्यूअर, क्वालिफाइड प्रोफेशनल और सर्टिफिकेट बैंक लेता है कि दिस प्रॉपर्टी हैज बीन वैल्यूड बाय सर्टिफाइड एम्पेरिड पर्सन।
लेकिन अब चूंकि एक आदमी अगर हम कर रहे हैं, हमारी कोई लिमिट होती है, हम 1 या 2 वैल्यूएशन कर सकेंगे। तो अब जिन लोगों ने एम्प्लॉय कर लिया 10 लोगों को, तो उन लोगों ने लो फीस पे भी काम करना शुरू, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम कर लिया। हम अगर एक वैल्यूएशन कर रहे हैं 10,000, 20,000 या 25,000 रुपए की, हम एक कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, 10 आदमी एम्प्लॉय कर लिया, उन्होंने 2,500 रुपए को। तो अगर हमने 10,000 रुपए में एक वैल्यूएशन हम कर पा रहे हैं, तो वो 2,500 रुपए लेके 10 आदमी से 25 वैल्यूएशन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय किया एक लो पेड, इनएलिजिबल और अनक्वालिफाइड पर्सन, जहां पे हमारी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज हो गया। और कहीं कहीं स्टिल्थली या चालाकी से वो कुछ, मैंने भी सीबीआई में मैं कुछ उनको कुछ केसेस में इनवाइट किया था और कमेंट्स के लिए, तो हमने वहाँ पे कुछ वैल्यूएशन रिपोर्ट्स उन्होंने हमको दिखाई, मेरा ओपिनियन जानना चाहा, तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ वैल्यूअर्स ने अब क्या किया, वो लिखने शुरू कर दिए हैं। कुछ तो लिखते हैं कि ठीक है, वो तो सर्टिफाई करते हैं मैंने ही किया, दैट इज ओके, नोबडी कैन चैलेंज दैट। लेकिन कहीं कहीं भी ये हो रहा कि कॉलम में लिख रहे हैं कि ये वैल्यूएशन मैंने किया, फिर अगले पेज पे लिख दे रहे हैं कि दिस वैल्यूएशन हैज बीन डन बाय माय एम्प्लॉय this without disclosing his qualification and experience. I mean, they don't ensure. 1 minute, sir. Hello. Sorry, sir. एक इंटरप्शन हो गया था। तो मतलब वॉल्यूम्स के चक्कर में एलिजिबल आदमी से काम कराते हैं, तो सबसे बड़ा वहाँ पे इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है हमारी, नंबर 2। और वो लोग, वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं लो फीस के लिए। अगर इसको किसी तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकें, हम इंश्योर कर सकें कि वो स्वयं कर रहे हैं, तो जो 10 वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो शायद 1 या 2 करेंगे, बाकी 8 जो हमारे बाकी वैल्यूअर फ्रेंड्स में हैं, दोस वर्क विल गो टू देम। जो स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन के लिए, जो नए यंग वैल्यूअर्स आए हैं इस प्रोफेशन में, जिन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, उसके बाद उनको क्यों ईमानदारी से काम करना है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लो पेड फीस पे काम करना जिन लोगों ने शुरू कर दिया है, उनको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली, और सबसे बड़ा इसमें क्या है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जो बैंक अभी समझ नहीं पा रहे हैं। बैंक इसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ठीक, इन्होंने कम फीस पे काम कर रहा है हमारा, वो करवा ले रहे हैं, और इस चीज को बैंकर्स समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इस रिपोर्ट के बेसिस पे, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ, सर्टिफाई किया हुआ, दिस प्रॉपर्टी हैज बीन वैल्यूड बाय सम पर्सन विदाउट मेंशनिंग हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अगर इस तरह की रिपोर्ट्स के बेसिस पे वो कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं और वो कोर्ट में चैलेंज हो जाती है, तो दे वोंट बी एबल टू डिफेंड, अपने को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अगर वो कह देगा कि इनएलिजिबल अनक्वालिफाइड आदमी की इंस्पेक्शन के आधार पे इवैल्यूएशन किया हुआ है और ये गलत है, क्योंकि सरफेसी एक्ट में, डिफरेंट एक्ट्स में स्पेसिफाई किया गया हु कैन बी द वैल्यूअर ऑफ अ प्रॉपर्टी अंडर दोस केसेस, तो बैंक डिफेंड नहीं कर पाएगा, उनको मुश्किल आएंगी। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बैंकर्स को या रेगुलेटरी बॉडीज को कुछ इस तरह का सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए, जिसमें वो इस बात को इंश्योर कर सकें कि वैल्यूएशन जो इम्पेयरमेंट आदमी है, जिसकी क्वालिफिकेशन और जिसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने अपने पैनल पे लिया है, उसने स्वयं इंस्पेक्ट किया है, और तो जब वो स्वयं करेगा तो ही विल फाइट फॉर हिज फीस आल्सो, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। खुद करेगा कि मैं करता हूँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, आई फाइट इवन टू एन एक्सटेंट। लेकिन अगर यही मुझे लगे कि ठीक है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, हमारे 10 आदमी है कर रहे हैं, तो कम आ रहा, कुछ भी आ रहा, हमारे पास तो आ रहा है, तो we'll go that way। तो मतलब अगर इस चीज को किस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे रेगुलेटरी बॉडीज, हमारे एसोसिएशंस इस बात को इंश्योर कर सकें इस तरह की रिपोर्ट्स न हो, क्योंकि ये रिपोर्ट अल्टीमेटली फेक हो रही है, क्योंकि ये क्वालिफाइड आदमी ने नहीं बनाई, नहीं देखी है एसेट्स को,
वो किसी और के देखने पे उन्होंने बना दिया है, किसी और ने रिपोर्ट भी बना रहा है। तो हमें इंश्योर करना होगा हमारी इंटीग्रिटी फीस से बनी रही है, वो खुद करेंगे और हम फीस को भी इंश्योर कर पाएंगे और बैंकर्स भी मजबूर होंगे फिर हमें हमारी फीस देने के लिए। और जो हाई वॉल्यूम के चक्कर में जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, काम कर रहे हैं, उनके काम पर रिस्ट्रिक्शन होगा। फिर जब काम कम होगा देन दे विल फाइट फॉर देयर फीस। और जो काम उनसे बचेगा, जैसे हमें क्या 2 काम कर पाते हैं, हमें अगर कोई 5 काम कह रहा है हम नहीं कर रहा, हम कहते हैं नो सर आई कांट डू, आई डू 2 आज कर लूंगा, तुम्हारा बाकी है कल कर दूंगा, कर दूंगा। So I mean that work will go to those who are new and those who are not getting. तो वैल्यूएशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। So this is what I have to say. और अगर इस विषय पे और बाकी लोगों को कुछ कहना है तो they can speak their mind. Right, sir? दास साहब प्लीज बोले। आप लोग या जो लोग भी दास साहब के साथ गला खराब है उनको बात नहीं कर सकते, बाकी और जो उपस्थित लोग हैं वो लोग बोले। I would like to invite all members. They can ask a question or they can raise a point to make this discussion more interactive. आपके हिसाब से इसका सलूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मैंने यही कहा, सोल्यूशन इसका यही कि हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं इस बात को इंश्योर करें किसी भी तरीके से, या उनके नॉलेज में आता है तो इन बातों को बैंकों को बताएं कि साहब इस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं, जहाँ पे रिपोर्ट एक तो स्टेटमेंट में नहीं है, बैंकों खुद लिख रहा है कि वैल्यूएशन हमने इंस्पेक्शन हमने नहीं किया है, किसी और ने किया, और विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज क्रेडेंशियल, विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज क्वालिफिकेशन, नाम लिख दे रहा है कि साहब फला एबीसी ने कर दिया। तो आई मीन हमारे नॉलेज में तो हम इस बात को बैंकों को बताएं, और बैंक अगर कोई होता बैंक तो मेरा कहना है कि वो भी उनको लेना तो वो भी इस बात को इंश्योर करें। जस्ट उसने इस बात में कॉस्ट कट करनी है तो कोई जो हमको सबसे कम फीस पे काम कर रहा है उसको काम दें, तो उनको भी इस बात को इंश्योर चाहिए कि साथ जो वैल्यूएशन सही होगी। मतलब ये हुआ कि ये ज्यादातर जो कन्विंस करना है बैंकर्स को करना है, समझाना है, और हम लोगों को भी रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, हम लोगों को भी इस बात को देखना है कि हम भी इस लालच में आकर के, हम वॉल्यूम के लालच में आकर के इस प्रैक्टिस में ना जाए, क्योंकि हम तो ये तो ये जो आइडियल कंडीशन में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रख पाए। राइट सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि हम जब हम लोग करेंगे तभी होगा, अदरवाइज ये लो फीस का सिलसिला बना रहेगा। और हो क्या रहा है कि हम लोग फीस के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। दूसरा एक इशू ये भी रहता है कि आपकी आवाज थोड़ा लाउडर बोलिए सर, आपकी आवाज में जी अलग अलग शहरों में भी काम कर रहा हूँ। वेरी राइट, तो वही हो रहा है। जैसे मेरे पास अभी पीएनबी से मैं लखनऊ में मैंने अप्लाई कर दिया था, लखनऊ से फोन आ रहा है कि साइन करने आइए, तो हमने कहा भाई साइन वाइन वहाँ पे आके नहीं कर पाएंगे, हम दिल्ली पे करेंगे। तो और वैल्यूएशन के मेरे पास आया, पूछा गया, उन्होंने कहा आपने अपना ऑफिस खोला, हमने कहा आप तो आपने हमको इम्पेनल किया, मैंने अप्लाई किया दैट्स राइट, लेकिन आपकी कंडीशन है कि हमें खुद ही वैल्यूएशन करना है, मैं खुद, तो मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजता हूँ। अगर आप हमको कोई बड़ा टिपिकल केस है हमारी टर्म्स में आप करते हैं तो मैं काम करने आऊंगा। तो मेरा मतलब जो आपने बिल्कुल सही कहा, अप्लाई हम करते हैं लेकिन आई डोंट ऑपरेट, मेरा तो ये मेरा पर्सनल मेरा प्रिंसिपल है कि मैं खुद जाता हूँ, मैं कर सकता हूँ बिल्कुल करूंगा, बिकॉज़ फॉर ऑल अदर वर्क आई टेक असिस्टेंस इन माय ऑफिस। मतलब रिपोर्ट राइटिंग के लोग हैं मेरे साथ, जो करते हैं कुछ करना है, बट प्रॉपर्टी को समझना मैं खुद करता हूँ। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग मल्टी सिटी में काम कर रहे हैं वो जरूर कहीं न कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपनी इंटीग्रिटी के साथ। इट इज वेरी ट्रू। कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम
वैल्यूअर की जियो फेंसिंग कर सकें? जी कोई ऐसा तरीका है कि हम वैल्यूअर की जियो फेंसिंग कर सकें? अब ये तो सोचना पड़ेगा। I'm not that tech वैल्यू से जियो फेंसिंग मैं समझता हूँ इतना वो करना I don't know। लेकिन देखा था कि हम जियो फेंसिंग वैसे तो करने को ये आया था कि लोगों ने फोटोग्राफ लगाई है, तो वो तो खैर मुझे ये लगता है कि उनको ट्रस्ट करना चाहिए हमारे ऊपर। और मैं खुद भी अपनी फोटो नहीं लगाता, अगर वो कहते हैं कभी मैं नहीं, आपको या तो भरोसा रखना चाहिए हमको, अगर नहीं भरोसा तो फिर काम करना चाहिए। तो वो थोड़ा सा नहीं, मेरा ये कहना कुछ बोलो तो यहाँ पे, रेडियल डिस्टेंस जरा कुछ बोलो तो। हाँ राइट जहाँ पे इनको हेडक्वार्टर है, करेक्ट यहाँ पे हेडक्वार्टर है 100 किलोमीटर या ठीक है उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके बाद बोलो तो। फिर there should be some proper justification। अरे बोलो तो कुछ आगे के साथ। और लेकिन उसको केसेस में इंश्योर किया जाए कि वैल्यूड नहीं किया। जैसे मतलब बहुत सारे एमपी केसेस में बॉम्बे अभी भी जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, महाराष्ट्र डिफरेंस में जा रहा हूँ, बट अकॉर्डिंगली आई चार्ज एंड आई गो देयर। लेकिन तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई आदमी करता है उसको कुछ हो मतलब इस तरह के रिस्ट्रिक्शन बैंक खुद लगाए या आप सजेस्ट करें, हमारी बॉडीज सजेस्ट करें बैंकों को। आई मीन बेसिक चीज ये है कि हम काम को आउटसोर्स न करें, हम इंडिविजुअल लोगों से काम न करें। हम कराएंगे तो हमें भी सहूलियत मिल जाएगी और फिर हम अपने को कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, हम फीस करें। तो हम खुद करेंगे, हमको वायबल नहीं होगा तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम फाइट करेंगे अपनी फीस लेने के लिए। सर मेरा ही जानना था हाउ टू स्टॉप द ये जो स्टार्टअप इन वैल्यूएशन जी जो वैल्यूएशन में स्टार्टअप आजकल आ गए हैं। अच्छा तो मैंने वही तो कहा, इसको तो इंडिविजुअल हमारे एसोसिएशन लेवल पे ही इन बातों का इस बात को रेस किया जा सकता है कि साहब स्टार्टअप्स है इन तरफ तो आप ये मैंडेट दे रहे हैं कि इंस्पेक्शन खुद करना है और स्टार्टअप्स 1000 वैल्यूएशन कर रही है और अब उनकी कंपनी में 4 ही क्वालिफाइड इंजीनियर्स, मतलब स्टार्टअप जो कंपनियां खुलने आई हुई है, कंपनी है 3 या 4 क्वालिफाइड लोगों के बेसिस पे आपने दे दिया और हाउ टू एक्सपेक्ट दैट दे 6000 प्रॉपर्टीज। सो स्टार्टअप देखिए अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जो हमारा वेल्थ टैक्स एक्ट में इंटरनल लेटर है, पता नहीं आई डू नॉट नो वेदर एनीबॉडी हैज नोटिस्ड इट और नॉट, उसमें देखा होगा कि इंडिपेंडेंट में दोस हु आर नॉट वर्किंग एनीवेयर एनी सिर्फ इंडिविजुअल ही वहां पे इंटरनल हो सकता है। उसके पीछे सिंपल सा मकसद यही है कि यू आर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबॉडी और वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को कर रहे हैं। ये जो स्टार्टअप्स को तो वैसे भी बैंकों को नहीं करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि उनको क्वालिफाइड आदमी का उनके पास क्वालिफाइड आदमी ही का। और मेरा कोई पर्टिकुलर कमेंट करने का मतलब नहीं है, पर लास्ट ईयर हमने एक वैल्यूअर के 22 इम्पेनमेंट की थी। जी एक वैल्यूअर के 22 इम्पेनमेंट। वो तो कोई भाई हम कह रहे हैं जैसे मैंने ही लिया है, मैं लखनऊ में आज तक करने नहीं गया हूँ, मैंने इंटरनेट लखनऊ के अप्लाई कर दिया फोन के वो सर वो जोन दूसरा हो गया, मैं सिंगल जोन की बात। अच्छा सिंगल जोन में ये डिफरेंट बैंक्स में है ना, वो एक ही बैंक में 22 इम्पेनमेंट, जितने भी टीम के लोग कंपनी के नाम से और जितने लोग टीम में सबके नाम से इंडिविजुअल के नाम से भी है, कंपनी के नाम से भी है। 22 इम्पेनमेंट ऐसा कैसे हो सकता है? 22 कैसे एनटीटी एक सिंगल है, उसका एक इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद दूसरे स्टेट में जहाँ भी उनके एम्प्लॉय बैठे हैं सबके नाम क्या चल रहा है? मतलब राष्ट्रपति का भाषण हमें तो दिखाई नहीं दिया न्यूज़ पे। मतलब 22 लोग कंपनी में 22 लोग रोल पे हैं इन लोग डिफरेंट सिटीज में। अच्छा सबका नाम बैंक क्या करना वैसी बात होती है। अच्छा वो चल रही है कंपनी का किस लोग एम्प्लॉय का 22 इम्पेनमेंट की बात। 22 लोग का अलग अलग भी है और कंपनी का भी है, आप कहना ही है। अभी सीबीसी चल रही है। एक आदमी जो है 22 लोग का इम्पेन कराता है, आप मालिक हो, अभी 22 बंदे भेजते हैं काम वो भी कर रहे हैं, 22 लोग पढ़े लिखे नहीं तो नमस्कार सबको, सॉरी मैं तुम्हारे को गया था, मेरे को बाहर बुलाया हुआ है और आज से जो आज राज्य ने जिम्मेदारी भी लगाई है, मेरे बाद में निकाल आया तो भाग के आया। सॉरी राइज सबको आवाज आ रही मेरे हुक्म भी मेरे को कुछ कहना था।
बस हमारी चल रहा है फेस वैल्यू मतलब जो कि हम नेगोशिएट करते हैं क्योंकि करने लगते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट को सर्विस खरीदने के प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हमारी इस टेंडेंसी का फायदा उठाने लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन सर्विसेज में अब ये क्या हो रहा है कि वैल्यू हमारे कुछ भी लोग जो एंकर से प्रेशर है कंपटीशन में कि वो कम से कम तो वैल्यू का प्रेशर डाल रहे हैं और फिर सारे और न्यू में बिजनेस करने लग रहे हैं सो दैट वो अपनी क्राइसिस को कम कर सकें, वॉल्यूम बिजनेस कर सकें। और उन्होंने अनक्वालिफाइड इनएलिजिबल लोग के आदमियों से इंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी कर दे रहे हैं कि दिस प्रॉपर्टी हैज बीन वैल्यूड एट $5,000 विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज क्रेडेंशियल क्वालिफिकेशन। एक तो इस तरह की रिपोर्ट्स फेक हो जा रही है। अगर ये बेसिस पे उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी तो साउंड क्लियर नहीं है, वर्मा सर प्लीज म्यूट कर लें, म्यूट कर लीजिए तो प्लीज। अगर उनकी रिपोर्ट चैलेंज हो गई कोर्ट में तो कैसे डिफेंड करेंगे बैंक? कि साहब सरफेस से एक मेंशन है कि सर्टेन क्वालिफिकेशन का आदमी कर जो इंस्पेक्ट करेगा वही करेगा और यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि साहब हमारे साथ चेक किया है। और अगर ये चैलेंज हो गया तो मतलब इस चीज को हम कैसे रोकें? क्योंकि अगर इस चीज को हम रोक सकते हैं तो होगा क्या कि हर वैल्यूअर के पास कुछ वॉल्यूम आएगा। जो एक वैल्यूअर जिन्होंने वॉल्यूम के सिलसिले में कुछ ऐसा राइटिंग में है नहीं, कर रहा है इसमें केवल बस एक वेटिंग है ना, इतना ही चाहिए बस हमको। हम काम करेंगे ये इन्होंने वेटिंग एक डिस्कशन का हो जाएगा। रेपुटेशन था उसको वेटिंग की। तो आपके क्या विचार हैं? मेरा इंसाफ तो बहुत सिंपल है। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपनी जो है अपना बात उतार करो, अपने स्टैचू के नीचे मत जाइए। ये तो मेरा पर्सनल विचार है। हाँ, अगर कोई हमारे इस नाम से नीचे देता है कहता भाई भी हम नहीं कर पाएंगे, सिंपल बात करते हैं नहीं सुनाएंगे आप कराइए तो मैं तो ये तो पर्सनल है। एक दो सीन नहीं मैच किया है लेकिन है वो आपको इधर बनेंगे। और जहाँ तक बात में क्या गवर्नमेंट है, अगर मैं खुद में अपनी शासन करते हैं तो हाथ में रेट बहुत हाई है, फीस बहुत हाई है। वो 15,000 नीचे करते नहीं। मैं तो फुल मेहनत किया है भाई जी। डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी वजह से। मेरे घर में कोई है नहीं, मेरी बेटी में शिक्षा बैठी हुई है। multiple speakers around, that's why this is happening. मेरी पत्नी रहते हैं, वो चुपचाप बैठे में काम कर रहे हैं। आपसे बात आपको क्योंकि ऐसा है पर्सनल ओपिनियन तो क्लियर है ना। जहाँ तक बात में आती है कि बैंक रजिस्टर करने से करा रहा है नहीं करा रहा है, जैसे केम भी है तो साफ दिखता है कि हमारा रजिस्टर कौन करेगा। अगर बिल्कुल खुद भी मानना तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि जो जब ऐसा काम कर रहा है दूसरे से करा रहा है ना, अनक्वालिफाइड से करा रहा है तो खुद भी फंसेगा तो वो फंसेगा। उसमें
और जहाँ तक बैंक अगर कुछ गलत काम पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो भी एक दूसरा भागीदार है, जो भी एक वजह हो जाए तो उसमें हिस्सेदार बन गया है। तो इस बात के लिए तो भाई देखिए तो स्टेट वैल्यू की जरूरत है, क्योंकि जो भी बैंक मैनेजर दूसरे से कहा है जो हम लोग हैं जो अपने मेरा से करना चाहते हैं, जो कल्चर में खुद करना चाहते हैं, अपने अपने थिंग्स भी अपना रखना चाहते हैं, इसको नीचे नहीं करते आई डोंट थिंक दे शुड गैदर। हमें अपने बात पे फर्म रहना चाहिए। मैं ज़्यादा बैंक का काम करता हूँ, उस बैंक में मैंने गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा सकते तो जब यहाँ पे तो हमने थोड़ा वैल्यूर को मैच करना होगा तो बैंक के लिए कोई दिक्कत नहीं। काम बैठे मुझे नहीं करना मैंने क्या कर देता उसमें कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं लिखा है कि वो करेंगे सेंट्रल वाले या बना लीजिए हॉस्पिटल हम जिसके लिए रखते हैं क्लास में उसके लिए पहले दूसरे बनाते हैं, हम अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो हम हमें अपने पे कंट्रोल रखने जिम्मेदारी नाम है इसका। साउंड ओपी वर्मा जो है उनका साउंड लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप है राजवी फुल वॉल्यूम कर रखी है। मेरे यहाँ पे इसका नेटवर्क में इशू है। और उसका कितना कॉन्टेक्ट करेंगे दोबारा करेंगे इसको आप सुनाई पड़ रहे हैं। हाँ सर, मैं कहना चाहता था कि बैंकर ही खुद ये कहता है कि फला आदमी हमसे कम रेट पे काम कर रहा है, मैं असाइनमेंट उसको क्यों ना दूं? इसका क्या सोल्यूशन है? मैं वही सोल्यूशन कि बैंकर क्यों दूसरा आदमी भाई आपस में अपने ऊपर कंट्रोल रखें, दूसरे को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? दूसरों पे भी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों पे हम ये कह रहे हैं कि दूसरा गलत कर रहा है, वॉल्यूम में काम कर रहा है, वॉल्यूम में कर रहा है, इसीलिए वो काम को कम नहीं कर पा रहा। ओनर भी आपके उधर ही रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। ओनर की जरूरत है नहीं है, काम हो जाएगा। मैं प्लेस पे बोलेंगे ना, कब जाएंगे आप? जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मैं पहले हो जाए जितनी जल्दी हो जाए। वो तो सस्ता चाहेगा, और सस्ता चाहने के लिए हो क्या रहा, सस्ता कौन दे पाएगा? जो वॉल्यूम में काम करेगा, वॉल्यूम में करने के लिए 4 साहब अपने बैंगलोर है, वो जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का चेक करने के इस लिए। बात को नोटिस में तो आ सकते हैं कि आदमी मंडे अगर वो ट्यूसडे में इंश्योर करेगा कि
गलत हो रहा है कहीं तो जो नेगेटिव वॉल्यूम में काम में जाएंगे, आपका नंबर हमने दे दिया तो मैंने कल होगा अनसर्टेनिटी वो भी फाइट करेगा अपनी पीस के लिए। सर मैं कह रहा था कि मैं नोटिस में किससे लाऊं? पेमेंट कुछ करा दोगे क्या? या डीजीएम से अगर डीजीएम खुद ही कहता है कि अगर ये जो हमारा है मैं आपको भी किसी और को वहाँ क्या कर मेरे भाई मैंने यही कहा था कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। एज ए कंज्यूमर हम भी जब कोई चीज खरीदने जाते हैं हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सस्ता मिले, कोई प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो, हम चाहते हैं और नेगोशिएट भी करते हैं, उनका भी राइट है। वो ऑब्वियसली टॉप अप देंगे, टेक ओवर प्लस borrowers का प्रेशर है, ऑब्वियसली कहेंगे। और अब पूरा बिलिंग और एस्टिमेट कहाँ लगा देंगे? फ्रेमवर्क सेट किया गया है, वो फ्रेमवर्क को अगर मेंटेन लोन तो उसका 7-8 लाख बचा हम है, 7-8 लाख बचा है, करेंगे टेक ओवर करेंगे। लेकिन अगर हमने वॉल्यूम के चक्कर में हम लोग बड़े एस्टिमेट नहीं बनना, टॉप अप देंगे कि अगर बहुत सी फ्लो जो अलग बात से बनती कम। जो लोग यहाँ पे ये दे रहे हैं अब लाख 2 लाख हो तो कुछ भी दिखा दो, डेंटिंग पेंटिंग वो अलग बात है। मिलने चाहिए 12-13 लाख। कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन में मैंने खुद रिपोर्ट देखी है, नहीं तो वो देखते नहीं थे किन्हीं कारण से वो उन लोगों ने रिपोर्ट में देना शुरू किया है। दिस हैज बीन वैल्यूड बाय सम पर्सन। माय प्रिंसिपल है बीपीएमजी इंटर कॉलेज। लेकिन यहाँ पे वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बैंकर भी, तो हमें बल्कि नोटिस में लाना है कि भाई यू हैव टू इंश्योर। देखा हुआ है मेरा, क्वालिफाइड आदमी ही अभी नहीं क्वालिफाइड पहले देखा हूँ, गाड़ी दी थी हमने कौशलपुरी से, कम नहीं दे पाएगा अंदर से नहीं देखा। और आप बैंक में रहेगा एक तो जो उसको उसके पास मैंडेट है, दोनों कमाते हैं, आप ये ये दोनों आईडी में दे रखिए कि आप किससे वेरीफाई कराएंगे, इस बात को इंश्योर करेगा। हमें तो नहीं करना चाहिए इसमें किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जो प्री स्ट्रक्चर बैंक का है अगर उसी को डिनाई कर रहा है बैंक तो वहाँ क्या दिक्कत किया जाए? अगर कोई डिसऑनेस्ट है हम कोई एनफोर्समेंट एजेंसी तो है, अगर हम उसको एनफोर्स बाध्य तो कर नहीं सकते, हम उसको और इस तरह की चीजें आ रही तो उसके नोटिस में बैंक की लाए। इस तरह की फेक रिपोर्ट अगर आपके पास आ रही है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप मुश्किल में आएंगे। गाजियाबाद से स्पीकर है। अदरवाइज तो फिर ऐसे ही रहेगा भाई, ठीक है लोग वॉल्यूम में काम करेंगे, फीस अभी 2,500 हुई है, कल को 1,500 होगी, परसों 1,000 हो जाएगी, तो फायदा नहीं, यू विल ड्रॉप आउट। और अगर आपको रहना है इस प्रोफेशन में तो आपको कुछ तो एज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, अपनी एसोसिएशन लेवल पे हमें कुछ तो मेजर अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे। जी जी सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, फीस तो अभी 1,000-1,200 की हो गई है। ये रिपोर्ट बिल्कुल भेज देना घर पे किसी ने। जो आपका जो चाहिए कि हमें साइड देखनी चाहिए, हमारे सीनियर्स, हमारे ही बैंकर्स, हमारे ही कॉलीग्स, हमारे ही फ्रेंड्स, उसको जो बैंक की प्रिस्क्राइब फीस है 500, उसमें न करके कहते हैं लाइव दीजिए हमको 1500। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इशू ये इशू सबसे बड़ा, इस चीज को इसी तरह से हमें इंश्योर करना है। वो अपने ही जाके कर रहे हैं सर, वो करके उसके बाद अगर देखिए जो एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स का जो रूल है, 3 चीजें उसने बताई है एडम स्मिथ ने। पहला बताया इकोनॉमिक्स में कि सेल्फ इंटरेस्ट काम हर जगह करेगा, नंबर 2 कंपटीशन, नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई। आई मीन इकोनॉमिक्स में अगर थॉट से जाए तो उसमें स्टडी ये इसी बात की है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स यही है। तो एडम स्मिथ का वो कहता तो हमारे आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी और प्रतिस्पर्धा में हमें अगर सर्वाइव करना है, ध्यान नहीं है, नहीं तो हमें कॉम्पिटिटिव होने के लिए अपनी कॉस्ट कम करनी होगी, क्वालिटी बना के रखना होगा। बड़े बहुत सेंसिटिव है वो ये इसी बैंकर्स इसी का फायदा उठा रहे हैं।
तो बैंकर्स इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। बैंकर्स तो फायदा इस बात का उठा रहे हैं, उनको अगर सस्ती कोई चीज मिल रही तो हमें आपको भी कोई चीज मिलेगी और आप इस बात देने को आपको लगता है कि चीज सस्ती है, क्वालिटी अच्छी है, तो आप भी लेंगे, हम भी लेंगे। तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है। और ये बताया ना वो सेल्फ इंटरेस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं दिया था, हमें लग रहा कंप्लीशन का दिया था कंप्लीशन का। बिल्कुल ऑब्वियस है, आप आलू भी खरीदेंगे मगर शुरू में आपको सेम क्वालिटी का आलू 10 रुपया एक बेच रहा है, आदमी 8 बेच रहा है, तो आप 8 में सभी डील तो हमें लग रहा है कोरवाल कर रहा था ना, बैंक को भी सस्ता कोई देने वाला है और ये कोरवाल कर रहा था वही दे रहा है। वो तो हमारे पास तो सैंक्शन हो गया है, क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ कोरवाल है। को दिलवाना चाहिए था। इसको इंश्योर करने के लिए हमको कुछ इवॉल्व, हमें भी कोई तरीका वहाँ पे सैंक्शन हो गया था। मेरा मानना है एसोसिएशन के लेवल पर इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करें कि साहब जिसको आपने मैंडेट दिया है, जो आपको मैंडेट वो तो करते हैं, जैसे हम भी किसी को भेज दें तो नहीं पैसा नहीं लेते। इस बात को किसी तरह से हम जब इंश्योर कर सकेंगे, हमें इंश्योर कर सकेंगे कि जो लोग बल्क में या वॉल्यूम में बिजनेस कर रहे हैं वो इससे बाहर जाएंगे, ठीक नहीं लगता, आदमी कम ले अलग चीज है, प्राइसेस अपने आप थोड़ा अच्छी होंगी। लेकिन जहाँ वॉल्यूम हो रहा है, आपने कहा क्वालिफाइड आदमी वापस करा देंगे। हम खुद देख के गए जो आदमी मानता है जैसे ही वो देखे पर्ची लग के जाती है ना उसमें रिटर्न का लिख देते हैं। नहीं है वो कर रहा है, किसी को जैसे भाई को दिखाने के लिए ले गए थे, भतीजे को दिखाने कभी वही उन्होंने हम लोग कहते जमा करा के और नंबर लगवाया, रिफंड कर दिया उन्होंने। काउंटर पे जब वापस आए बोले कुछ नहीं, काउंटर पे वापस आए पता नहीं क्या लिख देते हैं, उन्होंने जैसे ही देखा तो ठीक है। हमारे एप्लीकेशन हो कोई और एप्लीकेशन बहुत सारे मेंबर रहते हैं, हमारे लेवल पे बहुत सारे मेंबर रहते हैं जिन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन में ऐसे बहुत सारे नॉन इंजीनियर लोग रखते हुए हैं। ऐसे थोड़ी कोई सकता है आपको आप एक घंटे में आपने कोई 15 20 50 रिपोर्ट सोल्यूशन थोड़ी वही कह रहा हूँ, अगर हम उसको चेक कोई जब नहीं कर सकता है, फिर भी हमारे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में 400 साढ़े 400 मेंबर जो भी उसमें से 50 से ज़्यादा होता 100 लोग रहते हैं जो कि इंस्टीट्यूट रखते हैं। तो इसको हम कहें कि कोई इंस्टीट्यूट बन जाएगा तो संभव ही नहीं है। जो मैंने कल इतना कहा तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, हाँ ये बात सही है कि जब आपने किसी को लगता है तो वही कोई गलत काम कर रहा है, गलत मतलब जैसे अभी हमारे पांडे जी ने बोला कि भाई मतलब ऐसा कोई कर रहा है या कोई मतलब कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में इंस्ट्रक्शन दे रही थी जो खुद करेगा तो वहाँ पे कर रहा है, तो हमें कंप्लीट करने का अधिकार है ना को डिपेंड करता है और हमारी एसोसिएशन से जो हमारी ऑफिस बेरर्स हैं वो इस पर फैसला ले सकती है। इंडिविजुअल लेवल पे तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। फीस की जहाँ तक बात है उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बाकी हमारे वहाँ भी जो मेंबर हमारे व्हाट्सएप पे वो भी लड़के मर गए तो भाई इतनी फीस होनी चाहिए, जो ये नो सोल्यूशन है। और पर फीस अगर कोई कम में कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते। हमें अपनी लेवल बनाना है अपने। अगर हमारे को लगता है कि अगर सामने वाले हमारे क्लाइंट को लगता है कि मुझे ज़्यादा फीस दे के मेरे से काम करा रहा है तो तुझे सोचा ही होगा करा रहा है, ठीक है ना, तो वक्त को कम करेंगे। बस अपने पर कंट्रोल रखो, इन चीज़ों का अगर सोल्यूशन नहीं है तो ना ही निकले कभी। हम बेशक एक नहीं अनेक नहीं कितनी बार अनेका एक बार भी इसका डिस्कशन कर लें कोई सोल्यूशन निकलेगा। खाली यही कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारे एसोसिएशन भी कहती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी कह सकते हैं कि आपने जो गाइडलाइन जारी की थी इसका उल्लंघन हो रहा है। दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। दैट्स राइट। वही हम कह रहे हैं कि हम बैंकों को बता सकते हैं कि उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो फीस कट करने का मुझे जो कारण लगता है, प्रमुख कारण लगता है कि वॉल्यूम यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल में जाना चाहते हैं
इकोनॉमी ऑफ स्केल में जाने के लिए वो यही कर रहे हैं कि साहब उन्होंने किसी 20 एम्प्लॉय कर लिया है और सबसे कह दिया कि तुम जाओ और तुम 2000 पे काम करो, 1500 हमको देना गया, तुम करना। ऐसी जो प्लान करता है तो हम कौन होते हैं बीच में काम करा रहा है, जानते हो कि उसने 10 आदमी रखे हुए हैं जो सुबह शाम दौड़ के कर लाते हैं, तो फिर ये तो बता सकते हैं कि कुछ है तो हम कौन हो सकते हैं, हमारी कौन सुनेगा। ये अब आपने बस हम ये तो बता सकते हैं कि साहब कंपनियों को जैसे वेल्थ टैक्स एक्ट में एस्टैब्लिश नॉर्म है कि साहब कंपनियों को उन्होंने लिखा है कि जो कहीं भी एम्प्लॉयड है उस पीरियड में उसका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। एंड इंडिविजुअल्स को ही दे रहे हैं, वो फर्म को या कंपनी को नहीं दे रहे हैं, या तो बैंकों को भी हम कहते हैं वेल्थ टैक्स एक्ट को फॉलो करें तो वेल्थ टैक्स एक्ट में कोई कंपनी को वेल्थ टैक्स एक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, तो वेल्थ टैक्स अगर रजिस्ट्रेशन और इसमें बैटरी ये है कि जो भी प्रेसिडेंट महोदय उनको हम सजेशन दे दें भाई वो अपनी कमेटी में डिस्कस कर ले, उसमें समझाए तो भेज देंगे। और से कुछ और बैठकर जो नंबर क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। अब बात कर रहे हैं, मैंने आरबीआई को लिखा था 2009 के आसपास, वो जवाब भी आता, इसलिए मुझे नहीं लगता है चलो बाकी आप देखते ही जाते मतलब एक एकेडमिक डिस्कशन था, इसकी कारण क्या हो सकते हैं, लो फीस के तो सबसे बड़ा कारण दूसरा यही है। और दूसरा एक ऑब्वियस सी बात है, इस फ्री इकोनॉमी में मार्केट में हर आदमी एक्सपेक्ट करेगा डिस्काउंट, जो प्रोवाइड कर सकेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे सर्विसेज या प्रोडक्ट उसको लोग कंज्यूम करें। ऐसा नहीं है कि लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं। एक बार मेरे को मैं अपनी बताता हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर आता है ना, तुम कानपुर के लखनऊ के हमें आपसे ही करानी है, बताओ उनका मैं नहीं जा सकता, बोले हमें आपसे ही करानी है, तो मुझे क्या करना मुझे हमारे गरीब भाई को फोन करना पड़ता है, भाई इसको देखा जरा एक आपने किसी कभी क्वालिफाइड और जिसके क्रेडेंशियल्स प्रूवन है आप उसी से कहते हैं। बैठा हूँ, मैं कहना पड़ता है कि मेरे अगर आपने किसी से कहा तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब उसके क्रेडेंशियल प्रूवन हो उसी से कराया जाए। खुद किया है तो बैंकर्स नहीं चाहता कि जो उसकी बैंक की प्रिस्क्राइब फी है वही वो भी देने में कतराता है। मालूम है भैया, हम भी से तो आपके साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ना पड़ता है। 20,000 फीस है तो 20,000 देने में कितना उसको बहुत परेशानी है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, लड़ाई नहीं पड़ती है, काम नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। मत दो, तुमने कराया है तो मैं पूरा दो। ठीक है, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, हम सारा सब कुछ फेस कर रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हैं, लड़ना पड़ता, लड़ जाते हैं, अगली बार काम नहीं मिल रहा है। हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं, हम दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, हमारे यहाँ पे 8 कैटेगरी है, ठीक है, तो अब एक कैटेगरी में मेरा नाम लिखे तो आ जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ तो मालूम होता है ना, मैं पूछ रहा हूँ आगे मेरा नाम लिखे कैटेगरी का है, 30,000 के हिसाब से तो 30 लाख रुपए का है। तो अब हमें मानो खाली प्लॉट भी करनी है या उसको बिल्डिंग बनी हुई है तो जोड़ तो हमें बराबर पड़ेगा, लेकिन हम जब एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि जो 30 लाख की बेनिफिशियरी हमको 5,000 दे रहा है तो हमको 6 करोड़ तो फ्लैट के हिसाब से दे, तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है सर, उनके बोर्ड ने अप्रूव किया है, सोच समझ यही पूछता हूँ। मैंने कहा देखो भाई, आपके बोर्ड में जिसने आपकी सैलरी अप्रूव की, मेरा आर्गुमेंट ये होता है जो आपकी सैलरी
और यूजिंग सिचुएशन में अप्रूव कर रहा है, उससे सोच समझ के किया है। हम लड़ते हैं, मिलता है नहीं मिलता अलग बात है। हम इस बात को कहते हैं कि अब भाई फीस भाई उनके बोर्ड ने अप्रूव की है, डिस्कस किया है, वो बेवकूफ तो नहीं बैठे जिन्होंने इस उसको अप्रूव किया है, पहले क्यों नहीं कम कर दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने पहले अप्रूव कम कर रखा, 5000 कर रखा, हाई फीस उनकी 5000 बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ इंडिया की हाई फीस बहुत ज्यादा है। हमारे भाई बंधु तो 1500 की बात कर रहे थे जी हमारे पांडे जी 1500 की बात कर रहे थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ बैंक ऑफ नहीं, बड़ौदा वो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी फीस है, मिनिमम फीस 700 है सर। मैं तो करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में एनपीए अकाउंट्स की फीस आप पढ़ेंगे तो 700 या 800 है। 5000 तक है मैक्सिमम फीस बैंक ऑफ बड़ौदा 5000 है। नहीं, मैक्सिमम फीस 5000 है, मैक्सिमम फीस 5000 है जहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। ये हाँ मैक्सिमम, लेकिन अगर कुछ बैंकों की फीस लाख रुपए भी है, इन्हीं पब्लिक बिल्कुल, बैंक। मैं वही पूछता हूँ, कहता हूँ भाई कि हमने नहीं तय किया, आपके बैंक के बोर्ड ने तय किया, जो आपकी तनख्वाह तय कर रहा है, उन्होंने भी सोच समझ के किया। लड़ने के लिए हम आगे बढ़े करते हैं, वो अलग बात है। इंडिया 10 साल में हेलो, हाँ मैं कह रहा था जैसे सैलरी सभी की इंप्रूव होती है एम्प्लॉइज की, क्या वैल्यू की फी का इंप्रूवमेंट नहीं होना चाहिए? बैंक ऑफ बड़ौदा का फी स्ट्रक्चर 2004 से वही चल रहा है। आपने ही खुद ही कहा कि जो फीस ने तो बैंक दे रहा, आप ही जब कम ले रहे हैं वो कम दे रहा है, वो तो अलग बात है, बढ़ लीजिए। मैं बताता हूँ बैंक ऑफ इंडिया की फीस, आप कभी किसी ने उनको सर्कुलर देखा है? जी हाँ जी, 5 लाख रुपीस है बैंक ऑफ इंडिया। यस, 5 लाख है फीस उनकी मैक्सिमम फीस, और डिसाइड उनके बोर्ड ने किया है, फीस कम नहीं है। इंपेंडेंट लेटर में उन्होंने मैक्सिमम 10,000 रुपए लिख के दी हुई है। हाँ यस, 5 लाख फीस है उनकी बैंक ऑफ इंडिया, इसीलिए मैं फाइट करता हूँ। मैंने कहा देखो किसी छोटे मतलब आपके बोर्ड ने डिस्कस करके आफ्टर डिस्कशन उन्होंने अप्रूव की वो फीस। वो बहुत सारे बैंकों की 50,000 तक की फीस है, तो ये हमने डिसाइड नहीं, उन्होंने डिसाइड किया। जब वो डिसाइड किए तो क्यों नहीं देंगे? यूको बैंक की है 50,000 तक की। यूको बैंक की और बैंकों की भी 50,000 तक है। जी 50,000 तक की। अभी ये यूको बैंक ने मुझसे कराया, मैंने उनसे डिसीजन मैंने उनसे पहले ही कह दिया, मैंने कहा देखिए फीस में पूरा लूंगा तब आप देंगे। ये उनके लास्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रांच थी, तो जब उनकी फीस है प्रिस्क्राइब उनके बैंक ने कर रखा है, हमने तो किया नहीं है, तो ये कहना कि वो बढ़ रहा घट रहा, हम ही मैं खुद अपने को देखता हूँ। ऐसे जब मैं 10 साल पहले उसी बैंक में जिस चीज के लिए 25,000 फीस मिलती थी, 2,500 बैंक वाले ऑफर करते हैं। यस यस बिल्कुल सही बात। तो ये हम फाइट करेंगे, वो ऑफर करते हैं, हम नहीं करेंगे, हम उसी फीस पे काम करेंगे। और ये फीस हमने प्रिस्क्राइब नहीं किया, आपके बोर्ड ने फीस प्रिस्क्राइब की है, बैंक ने तो कम नहीं किया है, वो तो हम अपने दबाव में आके काम पे तैयार हो रहे हैं। और जो हमने कहा था तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम में काम कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से काम करवा रहे हैं। और जहाँ तक प्रूफ की बात है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं हमारे सामने, हम तो लिख देते हैं। अब तो मुझसे कभी अगर पूछा जाता है कि वो डिफरेंस आ रहा है वैल्यूएशन की रिपोर्ट में, तो हमको शेयर करिए, डिफरेंस अगर आ रहा है तो हमको रिपोर्ट शेयर करिए, क्योंकि मैं देखूंगा। और मैं जहां पे देखता हूं कि अगर लिखा हो कि वैल्यूड बाय दिस पर्सन, सिंपली लिखता हूं ये फेक रिपोर्ट है, दिस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय एनी एलिजिबल एंड क्वालिफाइड पर्सन, सो यू कांट कंपेयर माय रिपोर्ट विद देम। मेरा कोई जवाब नहीं है, अभी लिख के भेजता हूं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एसोसिएशन लेवल पे लाना पड़ेगा इन चीजों को नोटिस में। एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम जो वॉल्यूम में काम कर रहे हैं उन पे तो कंट्रोल लगाए। अगर जो वॉल्यूम में काम नहीं कर पाएंगे, फिर ये वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट दूसरों के पास आएगा, जिनके पास वर्क नहीं उनके पास भी वर्क आएगा। जो 100 काम कर ले रहे हैं फिर 2 ही कर पाएंगे, बाकी काम तो बाकी लोग में तो जाएगा। और ये एसोसिएशन लेवल पे ही हो सकता है। और जैसे अभी किसी ने कहा कि मल्टी सिटी अप्रूवल,
प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स को भी दे रहे हैं, उस पर कंट्रोल करें। ये दोनों भी डिस्प्ले करो। और ये वैल्यूएशन में ही है। वो करें जहाँ पे सेक्शन 34 AB के वैल्यूज की एलिजिबिलिटी वहाँ पे बैंकों को फिर कंपनी फॉर्म को देना ही नहीं चाहिए। इंटरनल में एसोसिएशन इस बात को ला सकती है जो 34 AB में इस बात पे सर हमारा ये है जो हमारी मदर मैं बना दो, इसको 1 नंबर करो, उसको 2 नंबर करो। और वैल्यूएशन की तरफ देखने का मतलब ही नहीं होता। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव देयर बिजनेस एंड देयर एंटिटी। सर सभी को नमस्कार। मैं इंजीनियर संजय। मैं केवल पहली बार डिस्कशन हो रहा है इस मैटर पर। पहली बात तो ये है कि बैंकर्स बैंकर्स को क्या है कि रिपोर्ट से मतलब नहीं है, लास्ट फिगर से मतलब है। हमारा जो सैलरी बनता है हम लोग 30 ईयर से 25 ईयर से कोई 30 ईयर से कोई 34 ईयर। बैंकों को इससे मतलब नहीं है कि आप कितने पुराने, बैंकर्स को इससे मतलब है कि आप कितनी जल्दी रिपोर्ट मुझे दे रहे हैं। उनको इससे भी मतलब नहीं है, सिग्नेचर होने चाहिए जो उनके पैनल में है, रिपोर्ट किसने बनाई है, कब बनाई है, इससे बैंक को कोई लेन-देन नहीं है। एक मैं बड़ा डिस्क्लोज करूंगा इस चीज को कि आपने देखा होगा जो हम लोग पुराने वैल्यूअर्स हैं, बैंक उसको बुला के सर्जेसी वाली तो वैल्यूएशन दे रहा है, वो कौन सी दे रहा है, एनपीए वाली। और जितनी नई वैल्यूएशन है शायद ही बहुत कम आप लोगों को मिल पा रही होगी, जैसा कि मेरा अनुभव है, वो केवल पुराने वैल्यूअर्स को सर्जेसी वाली वैल्यू देते हैं जो सर्जेसी में रजिस्टर्ड है बैंक टैक्स में रजिस्टर्ड। एक दूसरा ये है कि एसोसिएशन में हमारे 400 साढ़े 400 वैल्यूअर्स हैं। क्या हम ये तैयार हैं हर वैल्यूअर कि हम आउट स्टेशन की वैल्यूएशन नहीं करेंगे? ये तय होना चाहिए एसोसिएशन लेवल पे। और इसके लिए मैं आदरणीय दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी स्टेशन पर जो भी बाहर के वैल्यूअर जा रहा है उनसे वो कंप्लेंट मांगे। और पहले तो अंडरटेकिंग हम ही लोग हैं, लखनऊ में आप लोग वैल्यूएशन हैं तो लखनऊ के लखनऊ वाले करें, अच्छी बात, लेकिन कानपुर से लखनऊ जाके वैल्यूएशन हो जिसमें कि हमारे खुद आईवा के मेंबर्स होंगे, क्या वो इस पर एग्री करेंगे कि हम कल लखनऊ में जाएंगे? अगर लखनऊ से कानपुर जा सकते हैं तो उसमें अगर खुद कर रहा है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। खुद कर रहा है ना सर, सर खुद कर रहा है ना सर, खुद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, खुद करके जाना तो उसमें एतराज होना चाहिए कि वो आउटसोर्स ना करे, दूसरों से ना काम कराए, इनएलिजिबल लोगों से काम ना कराए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खुद कर रहा है वो अपना पेन ले सकता है, जा सकता है। हम लोग एनसीआर में काम करते हैं, 50 किलोमीटर दूर मेरठ भी आते हैं, 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जाते हैं, ग्रेटर नोएडा 30 किलोमीटर दूर जाते हैं। आप तो सर आप जोन के लिए पूरे आप जोन घूमिए लेकिन आउटसोर्सिंग नहीं नोट कर रहा हूं। ये वही मैं यही पर आउटसोर्सिंग की ही बात मैं हमेशा एक मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आउटसोर्सिंग पे किसी भी तरह से कंट्रोल लगाने की कोशिश की जाए। क्या सर हम आईवा के मेंबर्स इसके तैयार हैं क्या? पहले पूछते आइए तब हम बाहर की बात करें। और आईवा के मेंबर्स यदि तैयार हैं तो यदि वो इसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या आईवा की मेंबरशिप उनकी समाप्त होनी चाहिए? ये पॉइंट है, इस पर अध्यक्ष जी अपना रखेंगे, क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि पहले अध्यक्ष जी हमारे एकदम बोलने के लिए बहुत अच्छे से गला उनका ठीक हो जाए। और पिछले 2 महीने से अध्यक्ष जी परेशान है गले के पीछे, क्योंकि ओरई भी आए थे तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई थी मुझे, वो बोल भी नहीं पाएंगे, वो मैंने सामने देखा है। तो मेरा कहना है कि नंबर 1 आउटसोर्सिंग हम आईवा के मेंबर्स ना करें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हम लोग हो चुके हैं थोड़े से एजेड, नए लड़कों को अपनी ब्रेड बटर चलाने के लिए एक फ़ोन पहुँचता है, वो बैंक से जाके पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं और बैंक में जाके वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं। ये शायद हम आप में से कोई भी नहीं करता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी अपनी एक स्वाभिमान है, सबका अपना वो। तो एक पिछड़ने का रीज़न ये भी है कि बैंकों को कल फाइनेंस करना है,
उसका आज मॉर्निंग में फोन आया कि संजय जी वैल्यूएशन कर दे दीजिए मुझे। मैंने हाथ खड़े किए, नहीं दे पाऊंगा। उसके तो ऑप्शन है। अब हम यदि कंप्लेंट करते हैं सर मुझे काम नहीं दे रहा, अरे संजय जी आप करते कहाँ काम है? आपसे जब रिपोर्ट मांगते हैं आप तो कहते हो 2 दिन लगेंगे, या नहीं दे पा रहा हूँ, बाहर हूँ। तो एक वो भी बैंकर्स कस्टम में बात नहीं कर सकते कि वो किसको काम दे रहा है किसको नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, आउटसोर्सिंग हम बंद कर देंगे तो निश्चित है। अच्छा, दूसरा कोई ऐसा तरीका इवॉल्व कर रहे हैं जिससे कि हम आउटसोर्सिंग को बंद करवा सकें, और जो उसका तरीका सिंपल सा मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर हमारे नोटिस में आता है, हमारे नोटिस में से बहुत सारे केस आ रहे हैं जहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि ये वैल्यूएशन हैज बीन डन बाय, ये जो हो गया किसी का नाम लिख दिया विदाउट उसके क्रेडेंशियल्स को विदाउट डिस्क्लोज किए, वो आदमी कौन है जिसने किया, वो हाई स्कूल पास आदमी की वाकई इंजीनियर है या कहीं और पे पैनल वैल्यूअर है या कोई क्वालिफाइड वैल्यूअर है। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइड लोग अगर कर रहे हैं तो ठीक है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन आपके पास क्वालिफाइड आदमी जैसे मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड होगा तो उसकी अपनी फीस होगी, आप उसको एंगेज नहीं कर पाओगे। सर आप अपना यदि आउटसोर्सिंग होती रहेगी तो आप अपना वॉल्यूम बहुत सारी ब्रांचेस क्योंकि आउटसोर्सिंग हो रही है। तो पहला स्टेप तो मुझे ये लेना होगा, जितने भी हमारे आईवा के रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, हम लोग सेमिनार भी करते हैं, हर साल इकट्ठे होते हैं और शानदार सेमिनार होता है, लेकिन मैं कहूँगा दिया तले अंधेरा। पहले हमें अपने से स्टार्ट करना होगा। हमारे 450 वैल्यूअर्स सम्मानी वैल्यूअर्स हैं, पहले हम ये निश्चित करें कि क्या हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब तो मैं दूसरे को दोष दूँ, बैंक को भी दोष दूँ। जब हमारे अंदर ही थाली में छेद है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका कोई सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी बात है फीस की बात है। फीस का तो आज एक बहुत बड़ा अच्छा किस्सा है, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, नए मैनेजर आए, मैं उससे मिलने गया पर्सनल कॉल के लिए, उन्होंने कहा संजय जी आपकी बहुत तारीफ सुनी। मैंने कहा सर किस पर में? अरे बोले आप तो फीस बाद में लेते हो जब लोन हो जाता है। तो मैंने कहा सर किसने कह दिया? मैं तो एडवांस लेता हूँ तब मैं काम करता हूँ। उन्होंने नहीं वकील साहब के बारे में सुना था ऐसा, लेकिन आप तो जब लोन हो जाता है तब कुछ नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसा काम करते नहीं। तो मेरे लिए डिपेंड करता अपने अपने ऊपर। दूसरा सर दास सर, मैं एक्चुअली मुझे जाना, मैं कमीशन दे दूँ। मेरी आगरा जोन के लिए मैं कहूँगा PNB के लिए मेरी CM सर से बात हुई थी, शर्मा जी। शर्मा जी ने कहा है कि अभी वो इंडेमनिटी बॉन्ड का वो चल रहा है मैटर, मुझे 10 तारीख को आगरा जाना था। तो उन्होंने कहा है कि अभी आप रुक जाइए, 4-5-6 दिन में सॉर्ट आउट हम लोग कर लेते हैं, तब हम लोग कॉल करेंगे आपको, तब आइए। तो ये सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो भी आगरा जोन से अपने को रिलेटेड है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 10 तारीख को मत आइए, तो 4-5-6 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो मैं आपको कॉल करूँगा। ये मेरा सजेशन। एक्चुअली उनका मेरा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट चल रहा है शर्मा जी से, तो लेकिन ये अगर वो ज़्यादा फोर्स करेंगे तो आएगा मजबूरन उनके खिलाफ जो लीगल नोटिस इशू करेगा कोर्ट में जाएगा। ये हमारा पॉलिसी है। अभी उन्होंने 4-5 दिन बाद के लिए बोला है, उसके एक्शन कुछ भी लेते हैं और ऊपर से क्या वो आता है, तो 4-5 दिन में फाइनल हो जाएगा, मैं आपको बता दूँगा। ये एक समीक्षा था कि कल रात में बात हुई मेरी शर्मा जी। ठीक सर, तो मैं 10 के बाद ही जाऊँगा, जब उनका फोन आएगा तो नहीं जाऊँगा। ठीक है। हेलो जी, मैं एस श्रीवास्तव बोल रहा हूँ लखनऊ से। ये 10 तारीख का जो PNB आगरा की बात आप बता रहे हैं, क्या सबके लिए इन्होंने ऐसा कर दिया है या इन्फॉर्म कर रखा है? देखिए आप उसका भैया आप उसका चिंता कतई न करो। जो मेंबर इम्पैनल हुए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट भरेंगे। और अभी लखनऊ में अभी 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट तो भरेंगे, पर 10 तारीख को जो उन्होंने मेल की है 10 तारीख को डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके लिए क्या नहीं आपको जाना कोई जरूरत नहीं है। पोस्टपोन कर नहीं, आप जो एक मेल भेज दो कि हम 10 दिन बाद आएंगे। हाँ, पिछले बार भी हम लखनऊ में भी हम लोग चिट्ठी भेजी थी कि हमारा मेंबर जो है आपने 1 दिन का टाइम दिया, आप जो है हमारा मेंबर जो है 3 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद करेंगे। वो फिर हुआ भाई, उनको भी मजबूरी है, वो भी डॉक्यूमेंट सबसे कराएंगे, तो इसलिए इसमें टेंशन ना करें। लास्ट टाइम तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कराया था।
हमने तो नहीं किया था, आग्रह हुआ था, पर हमें मेल नहीं आई थी, हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था, उसके बाद भी पूरे टेन्योर में हमने काम किया। मुझसे तो पर्सनली उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा ये, तब फिर क्या कहते हैं आप आइएगा, मैं कॉल कर लूँगा। हम जो है ना आपसे बात कर लूँ, एक मेल आप कर कभी दो। भी कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। मैंने एक्चुअली मैं मंडे करता हूँ आपसे, ये बात है मेरी पर्सनली। नहीं, अगर आप कहो तो अभी मेल कर दे उनको ना अभी कि हमारा मेंबर जो है 10 दिन बाद आएंगे। बाकी हाँ, उसके लिए वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक थोड़ी प्रॉब्लम थी, बुलंद सर का ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी। शर्मा जी, प्रवीण जी जुड़े हो क्या ग्रुप में? इसमें हो प्रवीण? बुलंद सर एक्चुअली उसमें मैनेजर ने उनसे कह दिया, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि हम पैसा भी अगर दे देंगे तो आपको जब तक ब्रांच में तब तक काम नहीं दूंगा। ये बातें हो रही थी, तो उसमें हम लोग ब्रांच को चिट्ठी भी लिखी है और उनका आरएम को भी चिट्ठी लिखा है। सर, ये आजकल बड़ा रूटीन हो गया है, यदि आप बीच के लिए इंसिस्ट करते हैं जैसे ये तो आगे से देर काम के लिए होता तो बड़ा जबरदस्त हो गया। तो मेरे ख्याल में और कोई डिस्कशन करनी है भाई? डिस्प्ले करो सर्टिफिकेट। तो मेरे ख्याल में और कोई डिस्कशन करनी नहीं होगी, और सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के लिए में समय आ गया, क्योंकि बहुत ज्ञान हम लोगों ने अर्जन करे हिसाब से है। तो पीपल मसाज ने कहा था कि आप ही, क्योंकि हम सबसे सीनियर हो और क्योंकि हमारे डीजीएम साहब नहीं आ पाए, तो आप ही सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना हमारे चीफ स्पीकर को। वर्मा सर, उनसे वरिष्ठ बहुत सारे हैं अभी सर हम अभी हम डिस्प्ले करो ना, तो मुश्किल से अभी 15 साल भी नहीं होगा। हमारे तो बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मेरे विचार में मैं तो लोगों ऐसा मत कर। चलिए, मैं आपके आदेश के अनुसार हमारे विजेंद्र प्रताप सिंह जी को जो आपने जारी किया उसको पढ़ के मैं देखता हूँ। All India Value Association is pleased to convey Shri Bhupendra Pratap Singh his appreciation for outstanding contribution in enhancing knowledge of its members through presentation of the subject, protecting integrity, addressing low fees and fake valuation during the webinar held on 8th of July today. ये सर्टिफिकेट अलवा की तरफ से दिया गया है, और बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छे हम लोगों को वेबिनार में हम लोग का एड्रेस करें, हमारी कामना है। आपको धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों को फॉर दिस। जनरल सेक्रेटरी उपाध्याय से अनुरोध करूंगा वोट ऑफ थैंक के लिए। उपाध्याय प्लीज। बहुत शॉर्ट नोटिस में व्यक्ति की जो है लेक्चर करने के लिए राजी हो गए। मैं इनका बहुत ज़्यादा जो है धन्यवाद व्यक्त करूँ। और इनके लेखन तो हम लोगों ने बहुत बार देखी भी है। इन्होंने भी कई बार जो है मतलब कि भाई अपने जर्नल में जो है प्रेजेंट करते हैं पेपर्स, और इनकी जो है वक्तव्य भी आज हम लोगों को मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को भी, और हमारी एसोसिएशन के जो है सभी सम्मानित गण, सारे फ्रेंड्स
वैल्यूअर मेंबर्स, मैं सबका जो है एक बार पुनः धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि भाई अपना कीमती समय निकाल करके इस डिस्कशन में जो है भागी बनते हैं। और इस क्रम को हमारे जो है जो हर महीने चलता है और हर महीने में जो है मतलब कि कुछ ना कुछ जो है हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स जो एक डे लाइफ में जो हम लोगों को जो है हम लोग आपस में शेयर भी करते हैं और ज्ञानवर्धक भी होता है। दास साहब का बहुत बहुत कोटि कोटि नमन कि जो इस क्रम में इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी इस चीज को ऑर्गेनाइज कराते हैं और इसको जो है कंटिन्यूएशन में जो है किए हुए हैं कि हम लोग सब जो है एवरी सेकंड सैटरडे को इस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बार पुनः जो है हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर श्याम सुंदर दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस एसोसिएशन को लेकर के भी चल रहे हैं और जहाँ सभी हमारे जो है मित्रगण अपने मेंबर्स वैल्यूअर्स आज उपस्थित होने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। उपाध्याय जी एक बात बोलना भूल गया क्योंकि वो 17 तारीख को बाहर जा रहा है, तो एक्चुअली 17 तारीख को हमारा फाउंडेशन डे भी है, एजीएम भी है, वो इन्वाइटेशन करने भूल गया आपको। तो उन्होंने हमसे कहा क्योंकि वो छुट्टी में है इसलिए उन्होंने आपको इन्वाइट नहीं किया। तो हम चाहेंगे तो अगर आप लोग कोई कानपुर या लखनऊ आसपास में कहीं हो तो शाम को 6 बजे प्रोग्राम है। होटल का नाम MK मनोज बताएगा, मेरे को हमको याद नहीं है। तो हमारा शाम को मीटिंग है, 6 से 9 मीटिंग चलेगी। तो आपको सबको चिट्ठी शायद मेल पे चला गया होगा। अगर आप लोग यहाँ आसपास में कहीं हो तो आइएगा जरूर, क्योंकि उपाध्याय छुट्टी में है, 17 तारीख को है नहीं, इसलिए आपको इन्वाइट नहीं किया। क्योंकि मैं हूँ इसलिए आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। तो इसलिए हम जनरल सेक्रेटरी की तरफ से वो क्योंकि आपसे उस दिन छुट्टी ले रखा है, तो इसलिए हम आप सबको निवेदन है अगर आप लोग आसपास में हो तो आइएगा जरूर। अपना कॉन्फ्रेंस में पहले भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आशुतोष जोड़ गया हमारे चेयरमैन साहब, एक्चुअली जरा होटल का नाम बता दें, हमें जरा याद ही नहीं कहाँ बुक करने गए थे। आशुतोष, आपका मेल भी चला गया होगा। आशुतोष, होटल का नाम क्या था? आशुतोष, चलिए ठीक है, आपको चिट्ठी मेल हो गया, आज ही हुआ है मेल आपको लोगों को। अगर मौका मिले, अगर आप यहाँ कोई काम में आ रहे हो तो आइएगा जरूर, हमारे साथ डिनर जरूर करिएगा। और तो मेरे ख्याल में यहीं पे ओपिनियन खत्म होती है। और किसी को कुछ कहना है? थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर।